everyone, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law Wala channel where we are going to deal with 200 MCQs based on the 9 minor laws that is a part of UPPCSJ 2023 preliminary examination. और students ये ध्यान रखेंगे, this is a revised session based on the previous MCQs that we have already taken, because in the previous session we had encountered some of the typing errors plus interpretation errors जो कि हमने session के दौरान देखी थी. So I do not want any of the student to commit those mistakes in the examination. This is the reason कि exam से पहले भी इस रिवाइज सेशन को आप जरूर देखें. 9 माइनर लॉज रहने वाले हैं यहाँ पे. हर माइनर लॉ से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं. सो डू कीप cross checking it with the answer key, or rather I will say that collect this PDF and the answer key, that is the answers that we are going to mark in this session from Law Wala Telegram channel. उस चैनल से आपको इस PDF के बारे में या PDF डाउनलोड कर सकते हैं आराम से. So the first act that we have before us is Rights of Persons with Disability Act 2016. First question says that when did this act come into force? So the right answer is 19th April 2017. मैंने आपको पहले भी बोला था स्टूडेंट्स दैट एक्ट नंबर का सारे माइनर लॉज के एक्ट नंबर का चार्ट बनाएंगे. अलॉन्ग विद दैट कब उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली, व्हेन इट केम इनटू फोर्स, एंड उसके साथ कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं. इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू मेक दिस और you haven't prepared this, I will request you do prepare this, क्योंकि ये गट फीलिंग है कि शायद एक दो क्वेश्चन तो आपको इन बेसिक डेट्स में से जरूर पूछा जा सकता है. सो ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड आप जरूर चार्ट्स बनाएं. इफ यू हैवंट मेड द चार्ट देन यू कैन जॉइन माय ग्रुप शिवानी सोलंकी टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे मैंने चार्ट सारे 9 माइनर लॉस का एक कंप्लीट एक सेगमेंट टेबल में मैंने वो चार्ट दे दिया है. सो डू कलेक्ट दैट चार्ट. विद सेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट डील्स विद होम एंड सेफ्टी, home and family, section 12, section 9, section 14 or section 20. So the right answer is section 9 deals with home and family. Next is under section 25, the Rights of Persons with Disability Act deals with what? Rehabilitation, healthcare, sporting activities or incentives to the employers in the private sector. So the right answer is healthcare. किससे deal करता है? Healthcare से deal करता है. Section number 12 of Right of Persons with Disability Act deals with access to justice, equality and non-discrimination, social security and duty to educational institution. Access to justice. देखो जब हम इस 2016 के एक्ट की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर नंबर और कुछ पर्टिकुलर राइट्स जो आपको दे रखे हैं, पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 में जो स्पेसिफिक दे रखे हैं, उनको थोड़ा अच्छे से याद रखना, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं. Which of the following is an example of specific learning ability? Now remember this is a GK question, this is not a law question, क्योंकि ये 9 minor laws किस में आ रहे हैं आपके? ये 9 minor laws आ रहे हैं आपके GK part में. किस में आ रहा है? GK part, that is 50%. So we cannot just stick to the BERECT but also have some other knowledge जो कि BERECT के interpretation के context में आएगा या BERECT के consonants में आने वाला है. First is mental retardation, dyslexia, ADHD और autistic spectrum disorder. So the right answer is autistic spectrum disorder. Chapter number 3 of Rights of Persons with Disability Act deals with what? It deals with rehabilitation, healthcare, education or incentives to the employer and private sector. It deals with your education. Who has the power to revoke registration? अब देखो रिवोकेशन वही करेगा जो कि यहाँ पे सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा. तो सर्टिफिकेट ग्रांट कौन करता है इस एक्ट के अंदर, या रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ कौन करता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. सो ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन रिवोक द रजिस्ट्रेशन. हु शैल कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड? व्हेन वी सी द वर्ड सेंट्रल इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट. सो राइट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट is going to constitute the advisory body. Central government. बराबर. Who shall be the chairperson of Central Advisory Board? Minister in charge of Department of Disability Affairs and Central Government. Member of Parliament का यहाँ रोल ही नहीं बनता है, and Secretaries to the Government of India का भी रोल नहीं बनता है. सीधा वो person who is in charge of Department of Disability Affairs, जिसको इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया गया, that person is going to be the chairperson of the Central Advisory Board. Who is included in the definition of barrier? मतलब what is included, क्या क्या चीज हम बैरियर में इंक्लूड कर सकते हैं. अगर अच्छे से देखोगे, अगर कई बार आंसर नहीं आता है तो अगर हम लीगल लॉजिक लगाएं तो भी हम अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं. कम्युनिकेशन, कल्चरल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल, सोशल, एटीट्यूडनल और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स. इट इज all of these. Question number 10 में सब कुछ आपके बैरियर which comes from your definition section. Section number 2 में
यहाँ पे आपको सारा का सारा डेफिनेशन मिलने वाला है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स। Under rights of persons with disability act, the disability shall have right to live in, जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको कहाँ राइट है? हॉस्पिटल में, कम्युनिटी में, ग्रुप में, एनजीओज में, ही हैज अ राइट टू स्टे इन कम्युनिटी। Under this act, dash shall take the measures to protect the persons from disability from all the abuses, violence and exploitation. Central government, state government, appropriate government, or none of the above. Right answer is appropriate government. Now this appropriate government, as we know that we have studied many of that, चाहे minor law हो या major law हो, appropriate government can be central government or state government, any of them, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको वो एक्ट जरूर अच्छे से पढ़ना है जो कि बता सकता है कि exactly appropriate government का मतलब क्या होता है, ठीक है? Under this act, no child with disability shall be separated from his parents on the grounds. कभी भी कोई भी ऐसे child को हम parents से अलग नहीं करेंगे merely because he is a disabled person, but there is an exception. किसके order पे हम उसको separate कर सकते हैं? Medical officer, magistrate, competent court और state government. Obviously, judiciary will always prevail. So, competent court अगर ऐसा decision देता है, that person can be separated from the parents. Which of the following are the duty of educational institution? क्या क्या ड्यूटी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की? एडमिट देम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एब्सोल्युटली। मेक बिल्डिंग्स एंड कैंपस, यस, एंड प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन। इससे होगा क्या? एक बच्चे की, एक चिल्ड्रन की या एक चाइल्ड की या चिल्ड्रन की क्या होगी? अच्छी एजुकेशन होगी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जहां की हम कई बार डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ देखते हैं। सेक्शन नंबर 16, राइट्स एंड एमिनिटीज अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, home and family, reproductive rights or all of the above. It includes all of the above. हर तरीके का राइट और कह सकते हैं कि अधिकारों का इंटाइटलमेंट एक डिसेबल पर्सन रखता है। क्वेश्चन नंबर 17, केयर टेकर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स एनी पर्सन इंक्लूडिंग पेरेंट्स एज वेल एज ऐसा कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है जो कि फॉर पेमेंट या विदाउट पेमेंट उस पर्सन को, डिसेबल पर्सन को सपोर्ट करे, असिस्ट करे। सो राइट आंसर इज सी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कितनी डिसेबिलिटी होनी चाहिए उस पर्सन में तब हम उसको बोलेंगे दैट नाउ यू आर कंसिडर्ड टू बी अ डिसेबल पर्सन? 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। रिहैबिलिटेशन अंडर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट मींस, क्या है पुनर्निवास का मतलब? एनेबलिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी टू अटेन एंड मेंटेन ऑप्टिमल फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और सोशल फंक्शन लेवल, गेटिंग ऑल कंफर्ट जोन्स। तो अब सबके लिए कंफर्ट जोन अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, किसी डिसेबल पर्सन के लिए अलग हो सकता है, तो यहाँ पे उसके हिसाब का रिहैबिलिटेशन नहीं देंगे हम उसको। प्राइमरी एंड वोकेशनल एजुकेशन विल आल्सो नॉट कम अंडर दिस। योर फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एज पर योर दिस एक्ट। परफेक्ट। व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ पर्सन्स विद राइट्स एंड डिसेबिलिटी एक्ट? मैंने आपको बोला था एक्ट नंबर जरूर याद रखना, 47, 48, 49 और 50। सो राइट आंसर इज एक्ट नंबर 49। How many chapters do the Rights of Persons with Disability Act have? Last session में we had encountered that there was a typing error in all these segments, है ना? It was said to be 37, जबकि right answer is 17. Okay? Who shall establish special court? अब चाहे आपका कोई भी माइनर लॉ हो गया, कोई भी स्पेशल माइनर लॉ हो गया है, किसको पावर है कोई भी स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश करने का और उसमें स्पेशल पीपी को बिठाने का या फिर आपके स्पेशल जज को बिठाने का? यहाँ पे पावर रहने वाला है स्टेट गवर्नमेंट को। किसको पावर है? स्टेट गवर्नमेंट। हु शैल अपॉइंट द स्पेशल पीपी? अब आप पॉक्सो की बात कर लो या फिर आपके राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट की बात कर लो या फिर फॉर दैट पर्पस एनी स्पेशल एक्ट ऑन एनी स्पेशल पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हमेशा स्पेशल पीपी और स्पेशल कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ही नियुक्त करता है। सो यहाँ पे हु शैल अपॉइंट, यहाँ बोला जा रहा है अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इट विल बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट। हाउ मच क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एसपीपी? अब हमने सेक्शन नंबर 24 पढ़ा है सीआरपीसी का, जिसका सबसेक्शन 8 ये कहता है कि अगर एसपीपी चाहिए तो वहां पे 10 इयर्स दे रखा है, लेकिन जब आप पर्टिकुलरली कोई स्पेशल माइनर लॉ पढ़ोगे तो वहां पे हमेशा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आपको क्वालिफिकेशन कितनी दे रखी है? इट इज ऑलवेज 7 इयर्स। 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, 7 साल से कम की उसकी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस? अगर किसी ने इस एक्ट का प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया, कितना पनिशमेंट यहाँ लगने वाला है? 2000, 10,000, 50,000 और 1 लाख। राइट आंसर इज 10,000 रुपीज फाइन। Under Section 91 of Persons with Disability Act, punishment for fraudulently availing benefit meant for benchmark
डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी थी एक ऐसे पर्सन को और उसका आपने एक फेक दिखाया कि आई एम ऑल्सो पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी और वहां पे बेनिफिट ले लिया, वहां पे पनिशमेंट कितना मिलने वाला है? स्ट्रेट अवे इट इज योर 2 years. Next, who shall notify guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability? Guidelines कौन बताने वाला है कि कौन सी एक डिसेबिलिटी है या किस हद तक एक पर्सन को हम डिसेबल मानेंगे, लाइक व्हाट विल बी द एक्सटेंट जिसमें हम उस पर्सन को डिसेबिलिटी की कैटेगरी में डालेंगे. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी द सेंट्रल गवर्नमेंट. How much reservation is allotted in agricultural land and housing in relevant schemes and development programs? कितना परसेंट हमको यहाँ पे reservation allow किया है? It is your 5%. ध्यान रखना with priority to women. Women को यहाँ पे साथ में क्या मिलती है? Priority मिलती है. Free education for children with benchmark disability is given to चाइल्ड ऑफ विच ग्रुप एज? कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं आर्टिकल 21A. वी ऑल्सो हैव फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि स्टेट को बोलता है यू हैव टू इंश्योर दैट यू मेक सच पॉलिसीज और रूल्स और रेगुलेशंस जहां पे चाइल्ड को फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जा सके. वैसा के वैसा इस एक्ट में भी लेजिस्लेचर ने ऐसा पॉइंट डाला है. 0 to 6, 6 to 18 years, 14 years और 18 years. राइट आंसर इज 6 to 18 years. Appropriate government under Rights of Persons with Disability Act shall take measures to ensure what? ये इंश्योर करेंगे उसको अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन मिले, कहीं पर भी जाए बस ट्रेन, उसके साथ कोई ऐसा भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए ऐसा स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर या वहां पे ऐसी मशीनरीज हो, है ना, जो कि उसको हेल्प आउट करे उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, उसको इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो सब जगह, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस हो. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Which section defines discrimination under your Rights of Persons with Disability Act? It is 2H. जो आपको पढ़ना है कि डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में है. डिस्क्रिमिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके आर्टिकल नंबर आपको 15 में ही नहीं दे रखा है. डिस्क्रिमिनेशन फॉर द फिजिकल और स्पेशल डिसेबल्ड पीपल के लिए आपको इस एक्ट में भी दे रखा है. Under Section 3 of Rights of Persons with Disability Act, appropriate government shall ensure कि जो person disable है वो क्या enjoy करे? Right to life, equality and dignity, right to religion, right to clean environment. ये इस एक्ट के अंतर्गत नहीं है, but yes, Constitution के अंतर्गत definitely है. तो all of the above कोई नहीं बोलेगा. Right answer is A, क्योंकि इस एक्ट के लिए पूछा है आपको for the purpose of Section number 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट रिसीव प्रेसिडेंट्स असेंट? अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की असेंट इनको कब मिली है? 29 दिसंबर 2016, 7 दिसंबर, 17 दिसंबर और 27 दिसंबर. राइट आंसर इज 27 दिसंबर. क्लियर? Now coming to the next act, that is Maintenance and Welfare of the Parents and Senior Citizen Act 2007. अब हमको पता है मेंटेनेंस 125 to 128 सीआरपीसी में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे थोड़ी स्पीडी रेमेडी है. क्या है? स्पीडी रेमेडी है और एक्सक्लूसिव रेमेडी है, जो कि आपको सिर्फ मेंटेनेंस नहीं, यहाँ पे अवार्ड के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, विच कैन बी फ्रॉम 5 to 18%, है ना. As per Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act, the maximum maintenance allowed may be ordered by tribunal, which may be prescribed by whom? तो यहाँ पे maximum maintenance आपको prescribe कौन करेगा? State government is going to prescribe. As per the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act, maximum maintenance of allowance कितना होगा? How much it will not exceed? It will not exceed 10,000 in any case. अगर जो अभी का अमेंडमेंट आई थिंक इट इज 2018 और 2019 अमेंडमेंट बिल है, ओके, अगर ये इफेक्ट में आ जाता है और बिल बन जाता है तो ये जो पॉइंट है आपका उस बिल में से हट जाएगा. ये लिमिट हटाने का ऐसा बिल बनाया गया है. सो लेट्स सी व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स. Who shall constitute appellate tribunal? Appellate tribunal कौन करेगा for the maintenance of parents and welfare of citizens act? It is your central government. ठीक है, कौन करेगा? सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि हमको पता है कि ट्रिब्यूनल कौन से लेवल पे है? स्टेट लेवल पे है. एपेलेट ट्रिब्यूनल भी हमारे स्टेट लेवल पे है. सो इट इज द स्टेट गवर्नमेंट हु इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द एपेलेट ट्रिब्यूनल. ओके, हु शैल प्रिसाइड ओवर एपेलेट ट्रिब्यूनल? अब एपेलेट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. Who shall designate मेंटेनेंस ऑफिसर? अब हमको पता है कि हमारे एक्ट में हमारे पास एक मेंटेनेंस ऑफिसर भी है. मेंटेनेंस ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा?
यहाँ पे इसका अपॉइंटमेंट होगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। अगर कोई भी स्पेशल एक्ट है जनरली वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंटमेंट करती है। पेरेंट्स अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट मींस फादर एंड मदर। कौन से फादर एंड मदर? बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव, स्टेप फादर एंड स्टेप मदर, सब इंक्लूड होते हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ 2007 के अमेंडमेंट पे हमारे ये हर तरीके के पेरेंट्स मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। As per section 8, now this is the question that has been rectified because there was a confusion among many of the students. तो यहाँ पे section 8 को अगर mention करेंगे तो शायद confusion थोड़ी दूर हो जाएगी, easily understood होगा अब ये question. Okay? Inquiry under section 5. सेक्शन 8 में दिया है कि अगर आप सेक्शन नंबर 5 में इंक्वायरी कर रहे हो तो ट्रिब्यूनल कौन सी प्रोसीजर को अपना सकता है? इट इज योर समरी ट्रायल। कौन सी प्रोसीजर को अपनाया जा सकता है? समरी ट्रायल को अपनाया जा सकता है। हाउ मच अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट विल बी अवॉर्डेड व्हेन एनी क्लेम इज अलाउड? कितना इंटरेस्ट अवार्ड किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर? नॉट लेस देन 5% बट नॉट मोर देन 18%। 5 to 18% यहाँ पे इंटरेस्ट अपॉन मेंटेनेंस, दैट इज इंटरेस्ट प्लस मेंटेनेंस दोनों मिल सकता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन हाउ मेनी डेज अपील हैज टू बी प्रेफर्ड अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट? कितने डे में यहाँ पे हम मेंटेनेंस के लिए मतलब एक एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं? राइट आंसर इज 60 डेज। क्या होने वाला है? 60 डेज। नो पार्टी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लीगल प्रैक्टिशनर हो ही, आप विदाउट लीगल प्रैक्टिशनर भी अपने मेंटेनेंस का क्या कर सकते हो? मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन को रख सकते हो या वहां पे अपना आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। तो स्टेटमेंट इज परफेक्टली ट्रू। Next question. Who shall take the measures for publicity awareness for the welfare of the senior citizen under maintenance and welfare of the senior citizen, parents and senior citizen act? तो यहाँ पे किसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो पब्लिसिटी का ध्यान रखे, वो यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करे? जब इस एक्ट में हमने अपॉइंटमेंट, स्पेशल कोर्ट, सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, तो यहाँ पे ये मेजर्स भी कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेने वाला है। Offence under Maintenance of Welfare and Senior Citizen Act shall be tried as summon by magistrate, summary by magistrate, warrant trial by court of session और your none of the above. अब अगर हम सेक्शन नंबर 25 को देखें तो वहां क्लियरली लिखा है समरीली बाय मैजिस्ट्रेट। कैसे होने वाला है? समरीली बाय मैजिस्ट्रेट होने वाला है। एज पर सेक्शन नंबर 27, which court shall not have jurisdiction in respect of any matter under this 2007 का act? It is your civil court. Civil court को यहाँ पे ऐसा कोई भी पावर नहीं होगा कि वो jurisdiction ले सके इस act के अंडर। Question number 47. State government under maintenance and welfare of parents and senior citizen act shall within how much period of time from the date of commencement of this act कॉन्स्टिट्यूट अ सब डिविजन? मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एम्पावरमेंट किया है या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी डाला है कि आपको एक सब डिविजन बनाना पड़ेगा इस एक्ट के कमेंसमेंट में आने के बाद। लेकिन कितने टाइम में एक्ट का कमेंसमेंट होने के बाद? इट इज योर 6 months। रिलेटिव कौन होगा फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट? एनी लीगल हेयर ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन। यस, वो कौन आ जाएगा? रिलेटिव में आएगा, पर वो माइनर नहीं होना चाहिए। अगर माइनर हुआ तो फिर वो सीनियर सिटीजन उससे मेंटेनेंस ले ही नहीं सकता। फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट इट इज वेरी नेसेसरी कि जिससे आप मेंटेनेंस ले रहे हो वो मेजर है। इज इन पोजेशन ऑफ और वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी। अब ये भी ध्यान रखना कि ये इस सीनियर सिटीजन की या फिर इस पर्सन की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। अरे भैया कुछ मिलेगा तभी तो ना कुछ देगा। सो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। Now let's come to the questions from Dowry Prohibition Act 1961. जहां पे when did Dowry Prohibition Act 1961 come into force? It came into force on 1st July 1961. 1st July 1961. Dowry Prohibition Act में डाउरी का मतलब क्या है? जो one party to marriage दूसरी पार्टी को दे, by the parents of either party to a marriage और बाय अदर पर्सन टू आइदर पार्टी टू द मैरिज। मतलब एक पार्टी के पेरेंट्स भी तो दे सकते हैं, बोथ ए एंड बी और ओनली ए। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50 इज बोथ ए एंड बी। हाउ डाउरी कैन बी गिवन? अब डाउरी की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो वहां बोला है डाउरी डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है, बोथ ए एंड बी। डाउरी अंडर डाउरी ओके, डाउरी अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इंक्लूड्स मेहर, डावर और नॉट। सो अगर हम प्रोविजो पढ़ते हैं, है ना, प्रोविजो पढ़ते हैं तो वह साफ साफ बोला है कि डावर और मेहर किस में नहीं आएंगे? डाउरी में नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इम्प्रिजनमेंट इज गिवन फॉर टेकिंग और गिविंग ऑफ डाउरी? कितना इम्प्रिजनमेंट दे रखा है हमको?
अगर गिविंग और टेकिंग की बात करें तो सेक्शन नंबर 3 बोलता है गिविंग एंड टेकिंग, सो द राइट आंसर ओवर इज 5 years, 5 years. What is the object of dowry prohibition act? अब ये इसका जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स तो हमको पता चलेगा. प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग, प्रोहिबिट गिविंग ओनली और प्रोहिबिट डाउरी डेथ. राइट आंसर इज प्रोहिबिट गिविंग एंड टेकिंग. गिविंग एंड टेकिंग दोनों होने चाहिए, वहां पे दोनों को प्रोहिबिट करने के लिए है. सेक्शन नंबर 3 डज नॉट अप्लाई टू. अब हमें पता है सेक्शन नंबर 3 में क्या बोला, अगर किसी ने मांगा या दिया भी डाउरी इट इज पनिशेबल. सेक्शन नंबर 4 डील्स विद डिमांड ऑफ डाउरी, है ना, डिमांड ऑफ डाउरी. अब यहाँ पे जब हम डाउरी की बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 3 में, तो उन्होंने बोला अगर आप प्रेजेंट्स दे रहे हो तो इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज डाउरी. प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड और टू द ब्राइडग्रूम, सो दोनों ही डाउरी के कैटेगरी में नहीं आएगा. अगर हम इसके रूल्स देखेंगे तो वहां हमको मेंशन करके दिया है कि कौन सी चीज जो है प्रेजेंट्स में आएगी. देखो प्रेजेंट्स यहाँ पर भी बोला गया है कि वो आपके कस्टम्स के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होना चाहिए और कभी भी वो उसकी जो उस प्रेजेंट की जो वैल्यू है वो कभी भी प्रेजेंट देने वाले के फाइनेंशियल स्टेटस से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, क्लियर. डिमांड ऑफ डाउरी फ्रॉम whom is penalized? From the parents of the bride or bridegroom, from the relatives and the guardian. Right answer is all of the above. Penalty for demand of dowry is 1000, 5000, 10,000 और 20,000. अगर किसी ने डाउरी की डिमांड की, क्या किया, डिमांड किया, तो पनिशमेंट कितना है, 10,000. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ डाउरी वॉज रिसीव्ड बिफोर मैरिज, अच्छे से सुनना, अगर डाउरी शादी से पहले मिली है, किसको मिली है, एनी पर्सन जो कि उस विमेन से रिलेटेड है या कोई कनेक्शन है, other than the women in connection with whose marriage it is given, then that person shall transfer it to. यहां कोई लेडी थी, उसको तो डाउरी मिली नहीं, लेकिन मान लीजिए उसको हस्बैंड को मिल गई या उसके ससुर जी को मिल गई है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज. इन्होंने टाइम बताया बिफोर मैरिज मिली है, तो ससुर जी उसको कब ट्रांसफर करेंगे, ऑब्वियसली बात है विमेन को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन करेंगे कब, विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज. शादी के 3 महीने के बाद वो ट्रांसफर करेंगे. और क्या लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि अगर डाउरी वाज रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन when the women was minor, जब women minor थी, then in that case वो पर्सन उस women को प्रॉपर्टी या फिर वो डाउरी कब ट्रांसफर करेगा, within the 3 months after she attained the age of 18. मतलब जैसे ही वो मेजर होती है उसके 3 महीने के अंदर अंदर क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी को या डाउरी को उस women को ट्रांसफर करेंगे जिसकी शादी में उन्होंने डाउरी लिया. No court shall take cognizance under dowry prohibition act except upon its own knowledge, police report, a complaint by the aggrieved person, a complaint by the person aggrieved by the offense. अब क्वेश्चन नंबर अगर 60 में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि कभी भी जो डाउरी है ना, डाउरी के लिए कोई भी वहां पे पुलिस रिपोर्ट दे सकता है या कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है. तो अगर एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेन करे, पुलिस रिपोर्ट मतलब FIR हुआ, एंड ओन नॉलेज मतलब सो मोटो. सो यहाँ पे एनी ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट डील्स विद द बर्डन ऑफ प्रूफ. अब हमारे पास 8A है और 8B है. एक में हमें बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बता दिया और एक में हमें किसके बारे में बताया, यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के बारे में बताया है. सो राइट आंसर इज 8A. Which section deals with dowry prohibition officer? It deals with section number 8B. एडवाइजरी बोर्ड को कौन अपॉइंट करता है? अब एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या है, वो मैजिस्ट्रेट को हेल्प आउट करेंगे ऐसा मैटर सॉल्व करने में. सो किसके द्वारा अपॉइंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, सोचना ही नहीं है यहाँ पे. When did Dowry Prohibition Act receive the President assent? अब इन्होंने प्रेसिडेंट की assent का डेट पूछा है. It is 20th May 1961. Next we have is Domestic Violence Act 2005. सेक्शन नंबर 10 ऑफ DV एक्ट डील्स विद, किससे डील करता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 10 हमको पता है. सेक्शन 10 डील्स विद सर्विस प्रोवाइडर की, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इनफैक्ट उनकी ड्यूटी क्या होने वाली है ना. सेक्शन नंबर 8 और 9 में क्या पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं हम हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर प्लस उसकी ड्यूटीज. अब सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है, ऐसा कोई भी पर्सन जिसने वॉलंटरी एसोसिएशन है प्लस उसका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर उसने खुद को रजिस्टर करवाया है, या फिर कोई कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है. ये दोनों किसके पास जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे और कहेंगे भैया हमको एज सर्विस प्रोवाइडर आप क्या कीजिए, रजिस्टर कर दीजिए. In the Domestic Violence Act, domestic violence include economic abuse as well as sexual abuse. Verbal और emotional abuse भी पढ़ते हैं हम और physical abuse भी पढ़ते हैं. So both A and B.
प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 5 सेज कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, सर्विस प्रोवाइडर के पास या मजिस्ट्रेट के पास कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या कंप्लेन रिसीव हुई है दैट सम डोमेस्टिक वायलेंस हैज टेकन प्लेस, या फिर वो वहां पे प्रेजेंट है उस प्लेस पे, देन प्लेस ऑफ इंसिडेंट, देन जहां डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, देन दे शैल इन्फॉर्म, क्या इन्फॉर्म करेंगे उस एग्रीव्ड विमेन को। इसमें से हमें इनकरेक्ट मार्क करना है। वो बताएंगे कि आपको सारे राइट्स हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लीजिए, रेजिडेंशियल ऑर्डर ले लीजिए, है ना, आपको शेल्टर होम, आपको सेफ होम, ये सब, या फिर मेडिकल फैसिलिटी की जो प्रावधान है हमारे एक्ट में दे रखे हैं। इनफैक्ट आप चाहो तो 498A ऑफ आईपीसी में भी जा सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो फॉर क्रुएलिटी अगेंस्ट योर हस्बैंड। फ्री लीगल एड है, इसके बारे में बताएंगे। दैट शी हैज राइट टू फाइल द कंप्लेंट अंडर 498, ये भी बताएंगे। अब ये बताने की जरूरत है क्या दैट शी हैज राइट अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट? नहीं, ये जरूरत ही नहीं है। सो हमें इनकरेक्ट मार्क करना है। Where a protection officer failed to discharge his duty as directed by magistrate without any sufficient cause, बिना sufficient cause के प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी करने में फेल कर दी है, वो किस चीज के लिए लायबल होने वाला है? He will be liable for punishment with the imprisonment 1 year and fine, और फाइन, ध्यान रखना वर्ड और दे रखा है, एंड नहीं दे रखा है। फाइन कितना होता है? 20K। अंडर सेक्शन 8 द नंबर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट में भी, क्या सिर्फ एक ही होगा या फिर एज मच एज योर गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, कंसिडर्स नेसेसरी। A notice on the date of hearing fixed under section number 12, हमको पता है सेक्शन नंबर 12 में क्या होता है, एप्लीकेशन फाइल करते हैं और वहां पे नोटिस दिया जाता है। सेक्शन नंबर 13 भी पढ़ रहे हैं हम आगे, दैट इज सर्विस ऑफ नोटिस। सेक्शन नंबर 14 में हम पढ़ते हैं कंसीलिएशन। तो यहां बोला है जो नोटिस इशू किया जा रहा है सेक्शन नंबर 12 के अंडर, वो मैजिस्ट्रेट किसको देंगे? वो मैजिस्ट्रेट कभी भी डायरेक्टली रिस्पोंडेंट को नहीं देंगे, वो पहले किसको देंगे? प्रोटेक्शन ऑफिसर को देने वाले हैं। In which of the following acts word adult male was struck down before the word person in 2Q? 2Q में जो हमें डेफिनेशन दे रखी है रिस्पोंडेंट की, उसमें से एडल्ट मेल वर्ड को हटा दिया और अब कर दिया है एनी पर्सन। ये कौन से केस में हुआ था स्टूडेंट्स? ये हमारे एक फेमस केस में हुआ था, दैट इज हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा। ठीक है, नरोत्तम दास मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इट इज योर 2016 का केस। ओके, सो कौन से एक्ट में यहाँ पे चेंज हुआ है? ऑब्वियसली बात है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मतलब अब सास, पहले तो सिर्फ ससुर जी और पतिदेव को जेल भेजा जा सकता था, अब यहाँ पे जो सासू है, ननंद है, भाभी है, उन सबको भी भेजा जा सकता है। Which of the following is not the duty of protection officer under your DV Act? कौन सी प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है? सेक्शन नंबर 9, ensure that the aggrieved person is provided legal aid, make domestic incident report, DIR प्रिपेयर करेगा, assist the magistrate in discharging the function। बिल्कुल, क्या उसका ये पावर है या ड्यूटी है टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मैजिस्ट्रेट, मिनिस्टर्स एंड एनजीओज? एनजीओज या मिनिस्टर्स कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या एनजीओज या मिनिस्टर्स के बीच कोऑर्डिनेशन करवाने का काम क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर का है? बिल्कुल नहीं है। हमें कौन सा करना था? नॉट अ ड्यूटी। ओके, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर? अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच किया रिस्पोंडेंट ने, तो यहाँ पे आपका पेनल्टी कितना है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन। ठीक है, लास्ट टाइम में यहाँ पे 25,000 था, दैट वाज द टाइपिंग एरर, जिसकी वजह से वी कुड नॉट फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, सो इट इज 1 ईयर और फाइन अप टू 20,000 और बोथ। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, एंड वर्ड नहीं है, एक बार प्लीज डू रीचेक इट विद योर पेरेंट, ओके, एंड कंफर्म इट। Which of the following is not relevant as far as protection of women from domestic violence is concerned? कौन सा relevant नहीं है? वर्क प्लेस, मॉनिटरी लीव, प्रोटेक्शन ऑर्डर, फिजिकल अब्यूज, ये सब तो हम डीवी एक्ट में पढ़ते हैं। वर्क प्लेस का यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है क्योंकि ये तो पॉश में है। फिजिकल अब्यूज अंडर डीवी एक्ट मीन्स एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज ऑफ नेचर विच कॉजेज, फिजिकल अब्यूज की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, जिसमें बॉडीली पेन है, हार्म है, डेंजर टू लाइफ, लिम्ब हेल्थ है, impairs the health of the women or her development, या फिर असॉल्ट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, या यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स है, वो सब कुछ फिजिकल अब्यूज की डेफिनेशन में आने वाला है। What kind of order or orders may be passed by magistrate in case relating to domestic violence? अब हमें पता है बहुत सारा है, प्रोटेक्शन ऑर्डर है, कॉम्पनसेशन ऑर्डर है, रेजिडेंशियल ऑर्डर है, मॉनेटरी रिलीफ है, और साथ में क्या है? कस्टडी ऑर्डर। इन सब के सेक्शंस याद रखना, एज वेल एज
एक्स पार्टे ऑर्डर भी पास कर सकता है, एक्स पार्टे एंड इंटरिम ऑर्डर्स भी यहाँ पे मैजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव, दैट इज 18 to 23 पढ़ना है हमको, नॉट जस्ट 22, 23 भी पढ़ना है. ओके, Which of the following is not the duty of the protection officer? अब ड्यूटी क्या नहीं है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर की? To ensure that the person gets the legal aid, ये तो बिल्कुल है. To bring about the change in the attitude of society towards women, ये थोड़ी ना ड्यूटी होती है. आगे के दो ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं. To maintain the list of service provider, providing the legal aid and counseling, shelter homes and medical facility in the local area within the jurisdiction of the magistrate, ये बिल्कुल ड्यूटी है. To make available safe shelter home if the aggrieved person so requires or forward the copy, तो ये भी क्या है, ड्यूटी है. क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7 में, जहां हम लोग किसकी बात करते हैं, शेल्टर होम की बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं, वो किसके रिक्वेस्ट पे मिलती है? या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप प्लीज एग्रीव्ड पर्सन को ऐसी कोई भी फैसिलिटी दीजिए. Which of the following is not the function of the protection officer under your section number 9? असिस्ट मैजिस्ट्रेट है, मेंटेन द लिस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर ये भी है, टू गेट द एग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड ये भी है. कौन सी ड्यूटी नहीं है? टू ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ, ये नहीं है क्योंकि ये कौन करता है स्टूडेंट्स? ये तो मैजिस्ट्रेट करता है. ओके, अंडर योर डीवी एक्ट व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग द ड्यूटी बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर? मतलब यहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्री एक्ट करता है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? 1 year और फाइन अप टू 20,000 और बोथ. क्लियर? द ऑफेंस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन नंबर 31 बाय द रिस्पोंडेंट इज, मतलब हमको नेचर बताना है इस ऑफेंस का. कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल, एज वेल एज बेलेबल, cognizable and non-bailable, non-cognizable and non-bailable. Right answer is cognizable and non-bailable. Make sure that you make a chart जहां पे minor laws के सारे offenses का nature भी आप offenses का nature का भी एक chart बना लें. ठीक है? Protection of women from DV Act is enacted by women, is enacted to protect women from violence, to protect married women, to protect women from domestic violence perpetrated by any adult male. अब देखो हमको वो केस याद रखना है जहां पे इस वर्ड को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है. Enacted to protect women from domestic violence perpetrated by any person. ठीक है, perpetrated by any person. ओके, मैरिड वुमेन का कुछ लेन देन ही नहीं है. कहीं पे लिखा है कि हमारी जो एग्रीव्ड पर्सन है ना, जो व्यथित व्यक्ति है, वो हमेशा एक मैरिड वुमेन ही होगी, है ना. अगर कुंवारी बेटी है, अपने घर में रह रही है, उसके माता पिता भी अगर उसके साथ ऐसा कुछ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं या भाई कर रहा है, तो वो डीवी एक्ट 2005 में रेमेडी ले सकती है. ओके, प्रोटेक्शन ऑर्डर इन फेवर ऑफ द एग्रीड पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 18 ऑफ डीवी एक्ट मे बी पास्ड बाय, कौन पास कर सकता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, मैजिस्ट्रेट. ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे. यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा? मैजिस्ट्रेट. Monetary relief under your DV Act is ordered by state government, central government, magistrate of first class or metropolitan magistrate or a protection order officer. This is your judicial magistrate first class or metropolitan magistrate. देखो protection officer की तो ये ड्यूटी आएगी कि वो जो monetary order मिला है वो comply हुआ है या नहीं हुआ है, उसके execution में protection officer वहां पे help out कर सकता है. Offense under 31(1) of DV Act shall be non-cognizable, non-bailable, non-cognizable, bailable, cognizable and bailable, as well as cognizable and non-bailable. Already हम deal कर चुके हैं अभी ये question, that is cognizable and non-bailable. Section number 12 deals with application to magistrate. यहाँ पे application दिया जा रहा है magistrate को कि ऐसी कोई women को order चाहिए, ऐसा women को कोई order चाहिए या फिर उसे ऐसी कोई relief चाहिए. Competent court under your DV Act means session court, judicial magistrate, chief judicial magistrate or JMFC or metropolitan magistrate. D is the right answer. Under DV Act, which authority shall request to shelter home or to provide shelter to aggrieved person and medical facility to the aggrieved person? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था. सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7 पढ़ेंगे तो हमें पता है सर्विस प्रोवाइडर भी कर सकता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी कर सकता है. सो राइट आंसर इज डी. Which of the following is correct? Protection officer shall as far as be possible be women. जब भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऐसी कोई अपॉइंटमेंट कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, दे नीड टू मेक श्योर कि जितना पॉसिबल हो सकता है कोशिश करें कि वो विमेन हो. ओके, सो द राइट आंसर इज दिस. डाउरी ऑफिसर of the district has to act as a protection officer? No. District magistrate can act as a protection officer? No. So the right answer is A.
प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 18 ऑफ डीवी एक्ट शैल बी एनफोर्स्ड टिल। अब विमेन ने क्या मांगा है, रेजिडेंस ऑर्डर मांगा, सॉरी नॉट रेजिडेंस, इट इज योर प्रोटेक्शन, बिकॉज रेजिडेंस ऑर्डर सेक्शन नंबर 19 में मांगते हैं। क्या मांगा उसने, उसने मांगा यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर कि ये जो रिस्पोंडेंट है ये मारपीट करता है, कभी भी घर में आ जाता है, सो यहाँ पे 2 सेना क्या पुलिस वाले तैनात कर दीजिए। अब जब वो आएंगे तो कब तक वो एनफोर्समेंट में रहेगा, जब तक विमेन को ये नहीं लग जाता कि उसका डर खत्म हो गया, मतलब जब तक वो खुद अप्लाई ना कर दे डिस्चार्ज के लिए। द एग्रीव्ड पर्सन अप्लाइज फॉर द डिस्चार्ज। इज इट क्लियर? क्लियर? The protection of women from domestic violence act extends to whole of India. देखना ही नहीं अब तो whole of India. Residence order is passed by magistrate under your section number 19. Under section 5, the police officer, the service provider, magistrate who receives a complaint are duty bound to inform the person about her right कि आप इस एक्ट में 18 से लेके 22 तक कोई भी रिलीफ ले सकते हैं। देखो जनरल रिलीफ 5 ही है, वो तो 23 को हम कवर करते हैं, एडिशनल तरीके की रेमेडी है। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर ये भी बताएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड ऑफर राइट टू फ्री लीगल एड एंड राइट टू फाइल कंप्लेंट अंडर 498A ऑफ आईपीसी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर इज डी। 93 says DV Act makes the provisions for appointment of NGOs as service provider for providing the assistance with respect to। अब service provider का काम क्या है, मतलब ये बोलते हैं ड्यूटी क्या है। It is given under section number 10 जो कि कहता है medical examination, बिल्कुल, obtain legal aid to aggrieved person, बिल्कुल, and provide shelter home। Right answer is all of the above। Next question, under DV Act which section deals with the duties and functions of the protection officer? Your section number 9 deals with the duties of the protection officer। A protection order made by metropolitan magistrate shall be enforceable। कब तक protection order जो है वो enforcement में रहने वाला है या कहाँ पे enforceable होगा? It will be enforceable throughout the India। इंडिया में कहीं पर भी उसको हम enforce कर सकते हैं। The service provider कहाँ defined है या कहाँ बताया गया है इसके बारे में? It is your section number 10। Which one of the following cannot be registered as service provider? Voluntary association under your सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको कर सकते हैं। कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इसको भी कर सकते हैं। कंपनी जो कि अदर लॉ में रजिस्टर्ड है उसको भी कर सकते हैं हम, लेकिन अ वुमेन रेंडरिंग द सोशल सर्विस, इसको हम कभी भी सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर अंडर योर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? सेक्शन नंबर, not section number, question number 99 says the right answer is 5 chapters and 37 sections। Question number 100, which section of DV Act deals with the relief in other suits and legal proceedings? कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग से? सो राइट आंसर इज बी 26। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, द क्वेश्चंस व्हिच आर डिस्प्यूटेड और द क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रेम्ड रॉन्ग, वी हैव स्किप्ड दोस क्वेश्चंस और वी हैव रिमूव्ड द क्वेश्चन टू इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट और इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मोर कंफ्यूजन, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग ही अलग अगर गलत है तो फिर आंसर तो सही निकल ही नहीं सकता। ओके, सो डू नॉट पैनिक इफ 1 or 2 क्वेश्चंस हैव बीन स्किप्ड। ओके, आई एम ऑलरेडी गिविंग यू अ डिस्क्लेमर। Next act that we have is POSH, sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition and redressal। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ऑब्जेक्ट में आ जाए कि क्या ऑब्जेक्ट है, इट इज टू प्रिवेंट, to prohibit and to redressal it। Redressal means to address it, okay, provide remedy। Which of the following are the duties of the employer according to your sexual harassment of women at workplace act? First is monitoring timely submission of reports by the internal committee, बिल्कुल। Providing a safe work environment at workplace, ये भी है। Requesting the women employees to dress appropriately, ये तो कोई पॉइंट नहीं बनता, ये गलत पॉइंट है। Treat sexual harassment as the misconduct under the service rules and initiate the action for such misconduct। So the right answer is A, B and D। कहाँ है A, B and D? C is the right answer। Employee under your POSH means regular employee, temporary employee, ad hoc or daily wage। Right answer is all of the above। ये कहाँ से आया है? ये हमारे definition clause से आया है। Among which of the following sexual harassment as defined under POSH Act is said to be sexual harassment? Physical contact and advances, demand or request for sexual favors or showing pornography। Right answer is all of the above। अगर हम IPC का सेक्शन देखें, अगर आप 354 देखो, 354A देखें, 354B देखें, 354 सी देखें या फिर फॉर दैट पर्पस डी स्टॉकिंग भी देखें, तो यहाँ पे आपको सब में कहीं ना कहीं ये सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मीनिंग ऑफ वर्क प्लेस अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आता है
हॉस्पिटल और नर्सिंग होम आता है, एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन और स्टेडियम और एनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सब भी आता है। तो कौन सी चीज नहीं आती? नन ऑफ दी अबव, इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं आता। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या वहां पे हम वुमेन को किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट से नहीं बचाएंगे क्या? ऑब्वियसली बचाएंगे। Question number 105, it says, which of the following may amount to sexual harassment under Sexual Harassment of Women at Workplace Act? कौन सी चीज sexual harassment को amount करेगी? Implied or explicit promise for the preferential treatment in her employment, मतलब पहला बोला preferential treatment, दूसरा बोला detrimental treatment। पहला बोला कि हम आपको prefer करेंगे अगर आप हमें ऐसे से फेवर्स दो तो, दूसरा बोला detrimental, नौकरी से तुरंत निकाल दूंगा, तो वो हो गया detrimental, injurious और dangerous to her, है ना। And third is humiliating treatment likely to affect her health or safety. So right answer is D, all of the above. इसके लिए क्या पढ़ेंगे? Section 3 plus 2N, बराबर। Any person entrusted with the duty to handle or deal with a complaint under your POSH Act contravenes your section number 16, he or she shall be liable. Section number 16 में दे रखी किसी भी चीज का कॉन्ट्रवेंशन किया, पनिशमेंट कितनी है? That person will be liable for the penalty according to the provisions under service rule. और आपका POSH Act क्या कहता है? कहता है कि सबसे पहले तो आपके सर्विस रूल्स प्रिवेल करेंगे। कुछ भी सर्विस रूल्स में दिया है वो मानिए, सर्विस रूल्स नहीं है तो फिर POSH रूल्स मानने पड़ेंगे आपको, ठीक है। What is the period of limitation for the appeal against the recommendation of internal complaint committee or local complaint committee? कितने टाइम में आप अपील फाइल कर सकते हैं यहाँ पे? राइट आंसर इज 90 डेज में आपको अपील फाइल करनी है। Which among the following are the duties of the employer? अलग से आपको सेक्शन दे रखा है कि आपको बताइए ड्यूटीज क्या एम्प्लॉयर की, ये बताइए। Provide a safe working environment to the women, yes. The penal consequences, conspicuous part में आपको penal consequences बताने हैं, बिल्कुल। Organize workshop and awareness programs for their employees for regular intervals for sensitizing the employees with the provisions of this act. Right answer is all of the above. Question number 109, which says district officer shall forward the brief report of annual reports. Annual reports का एक brief report submit करने वाले हैं under the POSH Act to whom? State Women's Commission, Central Government, National Women's Commission or State Government? Right answer is State Government. This question was also disputed in the previous session. So right answer please mark करेंगे सारे students. Where the employer fails to constitute internal complaint committee, he or she shall be punished with how much fine? देखना फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर उन्होंने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का एम्प्लॉयर ने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई है तो कितना पनिशमेंट मिलने वाला है? सो एज पर योर सेक्शन नंबर 26 ही इज गोइंग टू बी लायबल फॉर 50,000 रुपीज। कितना? 50,000 रुपीज। इफ द एम्प्लॉयर after having been previously convicted of an offense punishable under POSH Act, subsequently अब उसने ऐसा offense commit किया, same offense, अब कितना punishment मिलने वाला है? Twice the earlier punishment, ठीक है। कितना मिलने वाला है? Twice the earlier punishment. Next, every offense under POSH Act shall be non-bailable, cognizable, bailable और non-cognizable. अगर हम section number 27 को देखें तो it says it is non-cognizable. Do refer the section number if I'm mentioning any section number. Okay, it says it is non-cognizable. Comment the following. No court inferior to Metropolitan Magistrate or JMFC shall try an offense under your POSH Act. This is absolutely right, है ना। तो किसको हमने कॉग्निजेंस लेने का पावर दिया है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और MM, दैट इज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस केम इनटू फोर्स ऑन। देखो रूल्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? रूल्स की बात कर रहा है। रूल्स बोलूं या फिर फॉर दैट पर्पस अगर मैं एक्ट की बात बोलूं, चलो यहाँ एक्ट ही मानते हैं। तो एक्ट कब है? 9 दिसंबर 2013। मैंने आपको क्यों बोला यहाँ पे एक्ट लिखने के लिए? मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि रूल से आपको एनफोर्समेंट या इफेक्टिव डेट नहीं पूछी जाती, हमेशा एक्ट से पूछी जाती है। सो वी विल रिप्लेस द वर्ड रूल्स बाय एक्ट। सो इट इज 9 दिसंबर 2013. Moving on to next question. Where the aggrieved person, woman, is unable to make the complaint on account of a mental capacity or complaint may be made by. अब अगर वो mental है या फिर if she is dead, who is going to make a complaint on her behalf? Her legal heirs can make. This question was also disputed in the previous session. Please make sure that this question is corrected. If the internal complaint committee or local complaint committee arrives at a conclusion that the allegation against respondent has been proved, कि उसके अगेंस्ट ऐसा एलिगेशन प्रूव हो चुका है, वो क्या रिकमेंड करेंगे? एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट को ऑफिसर को एम्प्लॉय करेंगे, उसको ये बोला जाएगा, रेकमेंड करेंगे कि उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और उस सेक्सुअल हैरेसमेंट को आप मिसकंडक्ट के फॉर्म में ट्रीट करें। दूसरा, उसकी सैलरी में से एक
सम डिडक्ट होगा जो कि हम उस एग्रीव्ड पर्सन को, एग्रीव्ड विमेन को देंगे. सो बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. The local complaint committee, if prima facie case exists, forward the complaint to the police within how many days for registering the case under 409 of IPC. अगर लोकल कंप्लेंट कमेटी को लगता है हाँ जी ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो फिर वो 509 में केस को रजिस्टर करने के लिए पुलिस ऑफिसर को या पुलिस को कितने डेज में फॉरवर्ड करने वाले हैं ये कंप्लेंट? 7 डेज के अंदर. ओके, 7 डेज के अंदर. POSH Act received the assent of President on 8th March, 22nd April, 8 December or 22nd March. So right answer is 22nd April 2013. Right answer is 22nd April 2013. Let's now begin with PCPNDT Act, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ और डिफिकल्ट माना जाता है, जबकि है नहीं. Do watch the minor law session that we have taken. One short session जरूर देखिएगा. Write the full form of the PCPNDT Act. It means Pre-Conception and Prenatal Diagnostic Technique Act. क्या है? Pre-Conception and Prenatal Diagnostic Technique Act. देखो, जब आपका PCPNDT एक्ट एनफोर्समेंट में आया था 1994 में, उसी साल 1994 का ये एक्ट है, उसी साल आपका ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट भी बना था. ठीक है, तो इस एक्ट का और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं या इसका जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह सकते हैं वो लगभग सेम था. दिस इज द रीजन यू मस्ट स्टडी द बेसिक्स ऑफ दिस एक्ट, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है. सो इट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट इन विच ईयर? 1994. ओके, क्लियर है? Moving on to next question. Section number 4(2) of PCPNDT Act says no prenatal diagnostic technique shall be conducted except for the following purpose. क्या डिडक्ट करने के लिए? कोई भी हेमोग्लोबिनोपैथस है, कोई भी सेक्स लिंक्ड डिजीजेस है, या फिर कोई भी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है, तो दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव. सारे के सारे को हम सेक्शन नंबर 4 के अंडर ऐसी कोई भी एबनॉर्मलिटीज को टेस्ट करने के लिए ऐसी टेक्निक अपना सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड. Which of the following is not the function of appropriate authority? पहला है to take proper legal action against the use of sex selection technique by any person at place suo motu, या फिर अगर इसके नोटिस में लेके आया गया तो create public awareness, ये भी आपकी appropriate authority का पावर है. to make rules, ये इनका पावर नहीं है, क्योंकि ये पावर है appropriate government का. किसका पावर है ये? यहाँ पे appropriate government का पावर बनता है, यहाँ पे आपकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का पावर नहीं है. टू ग्रांट, सस्पेंड और कैंसिल रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल है ना, सेक्शन नंबर 17 वगैरह हम पढ़ते हैं, है ना. अब हालांकि रजिस्ट्रेशन आपके दूसरे सेक्शंस में होते हैं, तो उस केस में आपका एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का ये पावर नहीं है. रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ GCC, GC एंड GL PCPNDT एक्ट में कहां पे होता है? सेक्शन नंबर 18 एंड 19. सेक्शन नंबर 18 और 19 में. Gynecologist for PCPNDT Act means a person who possesses the post-graduation qualification in what? Gynecology as well as obstetrics. So both A and B. Pediatrician कौन होता है under your PCPNDT Act? Who holds the PG qualification in your pediatrics? Gynecology से उसका कोई लेन देन नहीं, obstetrics से भी उसका कोई लेन देन नहीं है. Prenatal diagnostic technique under PCPNDT includes प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी होता है प्लस टेस्ट भी होता है ना. मैंने आपको बोला था टेक्निक में प्रोसीजर प्लस टेस्ट दोनों इंक्लूडेड है, जब हमने डेफिनेशंस पढ़ा था. अबॉर्शन नहीं आता है. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर PCPNDT मींस हु? मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोजेसेस recognized medical qualification, बराबर, whose name has been entered on state medical register board, state medical register, whose name has been entered on, okay, has not been, यहाँ पे not आएगा, ठीक है, ऑप्शन में आप करेक्ट करें, has not been entered in the state medical register. So right answer is both A and B. Perfect. आगे चलेंगे. Fetus under PCPNDT Act means human organism during the period of its development from the beginning of 57th day. 57th day से जो begin हो जाता है वो होता है आपका fetus. Under PCPNDT Act, no prenatal diagnostic technique shall be conducted except, कौन सा situation में ऐसी टेक्निक को हम अपना सकते हैं? For the detection of any chromosomal abnormalities, genetic metabolical diseases or hemoglobinopathies है, okay? Hemoglobinopathies or all of the above. Right answer is all of the above. Under PCPNDT, no prenatal diagnostic technique shall be used to conduct the following condition. देखो, अगर ये सारी situations हैं जो हमें options में दे रखी है, अगर ये situations है तो यहाँ पे इस टेक्निक को अपनाया जा सकता है. एक तो होता है abnormalities चेक करने के लिए, दूसरा होता है कि कुछ conditions हो सकती है. abnormalities की हम बात ही नहीं कर रहे, कुछ ऐसी particular condition हो सकती है जिसमें हो सकता है कि women
जो प्रेग्नेंट है उसकी एज 35 अबव है, बिकॉज वी ऑल नो प्रैक्टिकली वी ऑल हैव सीन दैट इफ एनी women who is above the age of 30 years she do experience some of the complications after the age of 30 years. Pregnant women has undergone 2 or more spontaneous abortions या फिर ऐसा कोई टेट्राजोनिक एजेंट के थ्रू विमेन को क्या किया गया, एक्सपोज किया गया. दैट मीन्स टू से कि विमेन को ऐसा आपने एजेंट एडमिनिस्टर किया है जो कि जिससे कि कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना. तो ऑल ऑफ द अबव, इन सारे केसेस में हम उस टेक्निक को अपना सकते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स अंडर पीसीपीएनडीटी इज प्रोहिबिटेड अंडर विच सेक्शन. अब यहाँ पे लास्ट सेशन में हमारे पास क्या थे, कुछ क्वेश्चंस गलत थे. क्या थे, क्वेश्चंस नहीं, ऑप्शंस गलत थे. क्या थे, ऑप्शंस ही यहाँ पे हमारे पास गलत थे. सो राइट आंसर इज सेक्शन नंबर 6. दैट इज द रीजन व्हेन आई आस्क्ड यू टू करेक्ट द ऑप्शंस. तो ऑप्शंस करेक्ट करते वक्त भी हमने थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी, जिस वजह से वी कुड नॉट फाइंड आउट द राइट आंसर. 3A और सेक्शन नंबर 6 में कंफ्यूजन हुई थी, बिकॉज डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स इज प्रोहिबिटेड अंडर योर सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्स सिलेक्शन कहाँ पे प्रोहिबिटेड है, सेक्शन नंबर 3A. Central Supervisory Board under PCPNDT Act shall meet at least once in a month. कब मिलेंगे, at least once in a month. Under PCPNDT Act, appointment of the officers and the employees of the board shall be done. हमें पता है सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड होती है, इनके पास में हमें कुछ ऑफिसर्स चाहिए. क्या चाहिए, कुछ ऑफिसर्स चाहिए, कुछ एम्प्लॉइज चाहिए. ठीक है. सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड सेक्शन नंबर 7 में जो हम उसका पूरे मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो तो मेंबर्स होंगे, लेकिन उसके साथ कुछ ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज चाहिए ना, जो उनका कार्यभार संभालेंगे, तो उनका अपॉइंटमेंट करता तो बोर्ड है, लेकिन अप्रूवल किसकी लेता है, अप्रूवल हमेशा यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की लेगा. ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड ही सेंट्रल लेवल का है ना, तो परमिशन यहाँ पे या अप्रूवल यहाँ पे सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की लेंगे. एडवाइजरी कमेटी जो कि एडवाइस करती किसको, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड को, shall consist of 3 medical experts among the gynecologist, obstetrics, pediatrician and medical geneticist. 1 member of parliament, 10 eminent social workers की जरूरत ही नहीं है. बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीसीसी, जीसी एंड जीएल किसके सामने होगी, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. हमेशा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे. एंड कैंसिलेशन किसका पावर, कैंसिलेशन प्लस सस्पेंशन का पावर भी यहाँ पे किसको है, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड को है. क्लियर. एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अंडर पीसीपीएनडीटी कैन कैंसिल और सस्पेंड रजिस्ट्रेशन ऑफ जीसीसी, जीसी और जीएल. कब कर सकता है, इट इज आस्किंग व्हेन. सो मोटो कर सकता है, कंप्लेन पे कर सकता है, पुलिस रिपोर्ट पे कर सकता है, और बोथ ए एंड बी. अब देखो राइट आंसर देखेंगे, पुलिस रिपोर्ट, यहाँ उनको एफआईआर चाहिए ही नहीं, दे डोंट वांट एफआईआर, क्योंकि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है. अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास आप थोड़ी ना एफआईआर लेके जाओगे. ओके सॉरी, पुलिस रिपोर्ट दैट इज चार्जशीट पे, वो उनको कोई लेन देन नहीं. अगर उनको सो मोटो लगा ऑन इट्स ओन नॉलेज, या फिर उनको कंप्लेन रिसीव हुई, तो क्या करेंगे, वहां पे कैंसिल या सस्पेंड कर देंगे. किसको कर देंगे, जीसीसी, जीसी या जीएल को. Offense under PCPNDT Act are non-cognizable, non-bailable, non-compoundable, cognizable, bailable, non-compoundable, cognizable, non-bailable, non-compoundable और cognizable, non-bailable and compoundable. So right answer आपका रहने वाला है 137 का C, that is cognizable, non-bailable and non-compoundable. बहुत भारी offense माना गया है इसको. For how much time period records, charts, forms, reports and consent letters or all the documents are to be maintained. हमने क्या बोला, कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको मेंटेन करके रखना है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए. चार्ट है, फॉर्म्स है, कंसेंट लेटर्स है, विमेन का जिसका अबॉर्शन हो रहा है उसको 2 इयर्स तक के लिए आपको मेंटेन करके रखना है. और अदर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि आपके प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, देन इन दैट केस अंटिल योर प्रोसीडिंग इज डिस्पोज्ड, अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग, आपको उनको अच्छे से मेंटेन करके रखना है. Under PCPNDT Act, conceptus means any product of conception at the time of stage of development. Conceptus को सीधा सीधा बोलो, हमने 3 सेक्शन पढ़े थे. एक तो conceptus के बारे में पढ़ा, फीटस के बारे में पढ़ा और एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा, है ना. फीटस के बारे में हमने यहाँ पढ़ा. अब मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि कंसेप्टस आपका फ्रॉम द डेट ऑफ कंसीविंग टिल द डेट ऑफ बर्थ, पूरा आपका 9 मंथ्स का जो भी डेवलपमेंट होता है उसको पूरे को हम कंसेप्टस की कैटेगरी में डालते हैं. सो इट इंक्लूड्स योर फर्टिलाइजेशन, इट इंक्लूड्स द बर्थ एज वेल एज उस पूरे प्रोसेस के दौरान जो एम्ब्रियोइक मेम्ब्रेन उस चाइल्ड के अराउंड बिल्ड होती है, वो भी आपके किसकी कैटेगरी में आती है, कंसेप्टस के कैटेगरी में आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 3A प्रोहिबिट्स व्हाट, इट प्रोहिबिट्स सेक्स सिलेक्शन. बराबर है. अब आई होप ये डाउट किसी को भी नहीं रहेगा, जो सेक्स सिलेक्शन और सेक्स डिटर्मिनेशन का डाउट था वो किसी को नहीं रहेगा. जेनेटिक लेबोरेटरी अंडर पीसीपीएनडीटी मींस व्हाट, लेबोरेटरी and includes a place where the facilities are provided for conducting the analysis, where prenatal treatment is given, no, where the clinic is situated, no. अच्छा, इसमें एक और चीज इंक्लूड होगी,
वो व्हीकल भी इंक्लूड होगा जहां पे स्कैनिंग हो रहा है या उस कह सकते हैं कि टेक्निक के थ्रू इमेजेस क्रिएट की जा रही है ना, इमेजेस कैप्चर की जा रही है, तो व्हीकल भी इंक्लूड होता है. सो राइट आंसर इज ए. Certificate for registration is issued under PCPNDT Act to GCC, GC और GL shall be displayed obviously in conspicuous part of the place of business. ध्यान रखना, घर वगैरह में नहीं, business में. That is the reason whenever we attend any laboratory or any testing laboratory, we see के अंदर घुसते ही उनका एक क्या होगा, एक सर्टिफिकेट लगा होगा. इवन सेम अप्लाइज फॉर द डॉक्टर्स एज वेल, सेम अप्लाइज फॉर दीज डेज पार्लर्स एज वेल, है ना, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह जो होते हैं वहां पे ये सब सर्टिफिकेट्स लगा होता है टू शो दैट दे आर ऑथेंटिक एंड दे हैव रिसीव्ड द कंसेंट ऑफ द appropriate authority. Okay. Prenatal diagnostic procedure includes what? Ultrasonography, fetoscopy, taking or removing samples of amniotic fluids, chronic villi or blood. That is all of the above. हमने पढ़ा था, हमने टेक्निक पढ़ा, हमने प्रोसीजर पढ़ा, प्लस हमने टेस्ट भी पढ़ा. तो टेक्निक, प्रोसीजर, टेस्ट, डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ के जाना. अंडर PCPNDT Act, from appeal under PCPNDT from central appropriate authority shall lie to. हमारी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कैसी हो सकती है? सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो सकती है, स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो सकती है. अगर पर्सन इज एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल सुपरवाइजरी, सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहां लाई करेगी अपील? सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से एग्रीड है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट. सो राइट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट. 144 का राइट आंसर इज बी. अपील शैल बी प्रेफर्ड विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट फ्रॉम द सस्पेंशन और कैंसिलेशन. मतलब सेक्शन नंबर 18 और 19 में जहां पे हम ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट मिल रहा है हमको, इनकेस हमें अपील फाइल करनी है तो एज पर योर सेक्शन नंबर 21 30 डेज के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं. नाउ वी विल कम टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 विच सेज, अब ध्यान रखना, लास्ट टाइम वी कुड नॉट इंटरप्रेट द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. इट सेज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड वी वर स्टडिंग अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. इट इज सेइंग अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. अब देखो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही मैटरनिटी बेनिफिट का एक अमेंडमेंट हुआ है 2017 में. ओके, 2017 में, बिकॉज मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट तो 2021 में अमेंडमेंट हो गया, 2021 में अमेंडमेंट हो गया. सो दैट इज द रीजन मेनी स्टूडेंट्स वर गेटिंग कंफ्यूज कि ये कौन सा एक्ट है. दिस इज मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट को 12 वीक से 26 वीक्स तक के लिए इंक्रीज कर दिया. सिर्फ 3 महीने नहीं, अब लगभग आपको 6 महीने का यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक लीव मिल रहा है. 12 वीक्स मैटरनिटी बेनिफिट टू कमिशनिंग मदर एंड अडॉप्टिंग मदर को भी मिल सकता है. डूइंग अवे विद द वर्क फ्रॉम होम, ये जो है ये पॉइंट वहां पे नहीं है. एंड मैंडेटरी प्रोविजंस फॉर क्रेश इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैब्लिशमेंट हैविंग 50 और मोर एम्प्लॉइज. देखो, जहां पे 50 और मोर एम्प्लॉइज है वहां पे क्रेशेस को रखा जाता है, ताकि क्या होता है कि वुमेन वहां पे हर थोड़े टाइम बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जा सके या बच्चे को एक छोटा अच्छा माहौल मिले, उस चीज के लिए वो पर्टिकुलरली प्लेस उस न्यू बॉर्न बेबी के लिए रखी जाती है. सो राइट आंसर इज डी. A, B and D. C is not the right point as per your Maternity Benefit Amendment Act 2017. Total how many sections are there under Medical Termination Pregnancy Act? 8 sections. That's it. पहले लग रहा था Indecent Representation Act में सबसे ज्यादा कम सेक्शन है, but Medical Termination of Pregnancy Act में सबसे ज्यादा कम सेक्शन है. That is 8 sections only. Which section defines your guardian? 2A defines your guardian. Okay. Who has the power to make regulations? रेगुलेशन का पावर किसको है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को है. तो फिर रूल्स का पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कि रूल मेकिंग पावर किसके पास है? रूल मेकिंग पावर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. हु इज द गार्डियन फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट? है ना, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के लिए गार्डियन कौन होता है? 2A में हम पढ़ चुके हैं. तो इन्होंने बोला पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ माइनर as well as who is mentally ill और person having the care of the property of the minor. अरे माइनर की प्रॉपर्टी का कोई पर्सन केयर कर रहा है तो वो गार्डियन थोड़ी ना बन जाता है. नो डाउट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में हम गार्डियन 2 लोगों का पढ़ते हैं, एक तो पर्सन का पढ़ते हैं और एक प्रॉपर्टी का पढ़ते हैं. बट यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि वो पर्सन जो कि माइनर का टेक केयर कर रहा है या फिर मेंटली इल पर्सन, ये मेंटली इल पर्सन माइनर भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? मेजर भी हो सकता है. Care of a mentally ill person, both A and B. What is the act number of medical termination of the pregnancy act? क्या एक्ट नंबर है इसका? इसका एक्ट नंबर यहाँ पे रहता है हमारे पास, एक्ट नंबर 34 of 1971. When the pregnancy may be terminated by registered medical practitioner under Medical Termination Pregnancy Act.
कब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है? एज पर योर अमेंडमेंट द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स. अगर इट एक्सीड 20 वीक्स बट डज नॉट एक्सीड 24 वीक्स, तो यहाँ पे दो मेडिकल प्रैक्टिशनर की हमें ओपिनियन लगेगी, बोथ ए एंड बी. ठीक है. Opinion of how many registered medical practitioner under your MTP Act is required to terminate the pregnancy of 20 to 24 weeks? 2. Okay, 2 registered medical practitioner. And अगर सिर्फ 20 weeks तक है, then only 1. Where pregnancy may be terminated? कुछ पर्टिकुलर प्लेस बताई है MTP एक्ट ने. हॉस्पिटल स्टैब्लिश और मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल, और एनी प्लेस विच इज बीइंग अप्रूव्ड. सो बोथ ए एंड बी. What is the objective of medical termination of pregnancy act? क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का? टू प्रोवाइड फॉर लीगल अबॉर्शन? नो. टू प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टन प्रेगनेंसीज बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. टू प्रिवेंट अबॉर्शन? नो. टू प्रोटेक्ट द रेप विक्टिम फ्रॉम विक्टिम्स ऑफ द रेप फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी? नो. आपको इस एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ना है. प्रीएम्बल पढ़ने से ही आपको एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव पता चलेगा. ऐसे तो लीगल या क्रिटिकल रीजनिंग करके हम कोई भी ऑब्जेक्टिव निकाल लेंगे, बट यहां पे आपको प्रीएम्बल पढ़ना है. ओके. विच सेक्शन डील्स विद मेंटली इल पर्सन अंडर योर MTP एक्ट? इट इज योर सेक्शन 2B. कौन सा डील करता है? 2B. हु इज द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 5? दैट इज उस प्लेस पे जहां पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, उसका ओनर कौन होगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 5? एनी पर्सन हु इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, बराबर. रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग, बराबर. मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल और प्लेस, बराबर. सो राइट आंसर इज डी. What constitutes a grave injury to the mental health of the pregnant women under MTP Act? grave injury का मतलब क्या है? अब वो इंजरी किससे कॉज हो सकती है women को? जो कॉज हो सकती है by the rape, the anguish caused to the pregnancy women. अब किसी women के साथ रेप हुआ है तो उस वजह से if she conceives any baby and she becomes pregnant, तो she will be anguished, or in case pregnancy occurs due to the failure of any device which the couple has used to protect or limit the number of the child. Okay, to avoid any pregnancy. तो अगर वो नहीं हुआ and the device has failed and they have conceived, तो वहां से भी वो women क्या हो सकती है? anguish हो सकती है. anguish इसलिए हो रही है because unwanted pregnancy has occurred. Unwanted pregnancy has taken place. In this point, both A and B will amount to grave injury. Whose permission is required under MTP in case of termination of the pregnancy of the women who is mentally ill or minor? सीधा है guardian. ध्यान रखना, अगर कोई माइनर है तो भी गार्डियन की परमिशन. अगर कोई मेजर है प्लस मेंटली इल है तो भी गार्डियन की परमिशन लगेगी. लेकिन अगर कोई सिर्फ मेजर है, साउंड माइंड भी है, क्या है? साउंड माइंड भी है, तो उस विमेन की ही खुद की परमिशन लगने वाली है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Whose permission is required under MTP in case of termination of the pregnancy of the women who is adult plus sound mind? Women herself, women की खुद की permission. In which section registered medical practitioner under MTP is defined? कहाँ पे defined है ये? It is defined under 2D. Okay. Termination of the pregnancy under MTP by a person who is not registered medical practitioner shall be an offence punishable by. तो अब हमको पता है जब हम हमारा MTP एक्ट पढ़ते तो वहां पे हमें कुछ ऑफेंसेस बता रखे हैं, है ना? ऑफेंसेस बता रखे हैं अपार्ट फ्रॉम एनी ऑफेंस, जैसे कि जो आपके बिना मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अगर ऐसा कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया या ऐसे पर्सन ने किया जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है ही नहीं, देन इन दैट केस पनिशमेंट कितना होगा? नॉट लेस देन 2 years बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years. और हमको पता है 3 तरीके की पनिशमेंट के बारे में हमको बताया है अंडर योर सेक्शन नंबर 5. What is the nature of punishment under your section number 5? सब में रिग्रेस पनिशमेंट है. 3 तरह की या 3 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस दे रखे हैं और तीनों में क्या है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है. ओके. Indecent Representation of Women Prohibition Act, that is your 8th act. It says ये एक्ट कब इनैक्ट हुआ था? 1986 में. बराबर? Yes. What is the nature of the offense under your representation, indecent representation of women prohibition act? It is cognizable as well as bailable. ठीक है, cognizable भी और bailable भी है. Who has the power to make the rules? Indecent representation में rules कौन बनाने वाला है? It is your central government. Which section deals with? Okay, 167 is central government. Rules है बराबर central government. मैं state government तो नहीं बोला ना? Okay, चलो आगे. Which section deals with the offenses by the companies
कंपनीज ने अगर ऑफेंस किया है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7 है, इट इज नॉट सेक्शन नंबर 8, बिकॉज सेक्शन नंबर 8 क्या बताता है, सेक्शन नंबर 8 नेचर ऑफ द ऑफेंस बताता है. विच सेक्शन प्रोहिबिट्स एडवर्टीजमेंट ऑफ आइटम कंटेनिंग इनडिसेंट. एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, कहां, सेक्शन नंबर 3 में, और सेक्शन नंबर 4 में हमें पब्लिकेशन पे प्रोहिबिशन लगाया है. अंडर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, कोई भी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ रिप्रेजेंटेशन और फिगर जो कि हमने रखी है इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस. पनिशेबल है क्या, नहीं, बिल्कुल पनिशेबल नहीं है. क्यों नहीं है, सेक्शन नंबर 4 ने बोला, सेक्शन नंबर 4 ने बोला साइंस, लिटरेचर, आर्ट या फिर आप कुछ जनरल कॉज के लिए ऐसा कोई भी मटेरियल डाल रहे हैं तो दैट विल नॉट अमाउंट टू योर indecent representation of women. So is it punishable? No, it is not punishable. Under Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 seeks to depict the women in any form which is indecent, हाँ जी, punishable है. Denigrating to women, punishable है. Injure or corrupt the public morality of women, ये भी correct है. To deprive the women from certain rules, ये तो कोई objective नहीं है या इस चीज से related तो कोई ban नहीं है. So right answer is 1, 2, 3. 1, 2, 3. Right answer is A. ठीक है, आगे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. अब इन्होंने बोला कि पनिशमेंट कहां प्रोवाइड कर रखी है, इट इज योर सेक्शन नंबर 6 विच डील्स विद पेनल्टीज. ओके, अंडर योर सेक्शन नंबर 5 जहां पे सर्च हो रहा है या सीजर हो रहा है, व्हेन गेजेटेड ऑफिसर सीज एनी मटेरियल ही शैल इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म करेगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को. क्या इन्फॉर्म करने वाले हैं कि ऐसा कोई मटेरियल सीज किया है, एंड नाउ प्लीज गिव अस द कस्टडी ऑर्डर. आप ऑर्डर निकालिए एज टू द कस्टडी, वेदर द मटेरियल शुड बी इन आवर कस्टडी और वेदर इट शुड बी हैंडेड ओवर टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट. Which section of indecent representation of the act provides the nature of the offense? Nature of offense अब कहां provided है, सेक्शन नंबर 8 में, बराबर. Section number 4 of Indecent Representation Act prohibits publication of what? Books, pamphlets, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, all of the above. Section number 4 के general rules या general provision से भी ज्यादा आपको जो अच्छे से याद रखना है, that is exception. Last act that we have for today is POCSO Act, Prevention of Women from Sexual Offences Act 2012. We will read this, or we have already finished a minor rapid revision, rapid one-shot session on POCSO Act along with amendments as well. POCSO Act applies to whole of India, except Jammu and Kashmir khatam, only in the states of India, nahi, whole of India. Child for the purpose of POCSO is anyone below the 18 years of age. सेक्शन नंबर 35 ऑफ पॉक्सो डील्स विद टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ पे पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ द चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ द केस, बराबर है. द स्टेटमेंट स्टैंड्स वैलिड इन रिगार्ड टू द पॉक्सो एक्ट. कौन सा स्टेटमेंट सही है, कोई भी क्राइम अगर ऐसा चिल्ड्रन के अगेंस्ट हुआ है तो इट मस्ट बी रिपोर्टेड. यस, डेफिनेटली इट मस्ट बी रिपोर्टेड. अगर हम सेक्शन नंबर 21 देखें, सेक्शन 20 देखें, सेक्शन 22 देखें, सेक्शन नंबर 23 देखें, 23 को हम सेक्शन नंबर 20 के साथ पढ़ेंगे, है ना. आपको ऑब्लिगेशन दिखेगा, अगर किसी पर्सन को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है उसने इंफॉर्मेशन देनी है, एंड दोज हु डू नॉट रिपोर्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस उनको पनिशमेंट मिलेगी. सो बोथ 1 and 2 आर राइट. दिस इज फ्रॉम योर जीके पर्सपेक्टिव. पुलिस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज टू CWC, है ना, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिपोर्ट करेंगे. कितने टाइम में, 24 आवर्स फ्रॉम द रिपोर्ट बीइंग रिसीव्ड. एक्ट नहीं, फ्रॉम द टाइम जब उनको रिपोर्ट रिसीव हुई है उसके 24 घंटे में CWC को इन्फॉर्म करेंगे. कौन इन्फॉर्म करेगा, या तो लोकल पुलिस करेगी या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट करेगा. ओके. पनिशमेंट फॉर द फेलियर ऑफ रिपोर्ट और रिकॉर्ड द केस. केस को रिपोर्ट नहीं किया या रिकॉर्ड नहीं किया, कौन से सेक्शन में पनिशेबल है, सेक्शन नंबर 21 में पनिशेबल है, क्योंकि सेक्शन नंबर 20 में तो मीडिया के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन डाली है, 21 में फेलियर टू रिपोर्ट द केस हो गया, 22 में फॉल्स एलिगेशन लगाया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, और 23 को हम किसके साथ पढ़ते हैं, मीडिया के ऊपर. 23 में ये बताया कि आप उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे. ओके. पुलिस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज. अरेंज द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल. टेक द मैटर टू CWC, बराबर, लेकिन 48 आवर्स में नहीं, 24 आवर्स में. तो ऑप्शन गलत हो गया. राइट आंसर इज 1, ओनली 1. Principles for the use of professional and experts assisting the child as per the trial are. क्यों हम प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स की असिस्टेंस लेते हैं वहां पे, या वो अगर ऐसी असिस्टेंस दे रहे हैं तो कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स? फर्स्ट इज राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड कंपैशन, इवन एनी चाइल्ड, एनी विक्टिम, और फॉर दैट पर्पस व्हाई नॉट इवन एक्यूज. सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सबकी
प्राइवेसी है और सबकी डिग्निटी है, दे ऑल मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल उसकी आइडेंटिटी वगैरह प्रोटेक्ट करनी है, राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल, जब भी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है मेक श्योर कि उसको स्पीडी ट्रीटमेंट आप दें ताकि उसकी लाइफ आप इंश्योर कर सकें। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये थोड़ा आपका लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, लीगल लॉजिक बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर द चाइल्ड्स इंटरोगेशन एज पर द पॉक्सो एक्ट। क्यों हम चाइल्ड का इंटेरोगेशन करते हैं? टू स्टैब्लिश वेदर द चाइल्ड नीड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन और नॉट, यस। टू हियर द चाइल्ड्स वर्जन, एग्जैक्टली वो सर्कमस्टांसेस जो चाइल्ड के वर्जन में है वो हम ले सकें। टू गेट द पिक्चर ऑफ चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स एंड फैमिली, अगर बच्चे से बात करोगे तभी तो आप उसके पिक्चर्स वगैरह देख पाओगे, उसकी फैमिली के साथ उसका कनेक्शन देख पाओगे, एंड वी विल एक्चुअली गेट टू अंडरस्टैंड कि वेदर उसका रिहैबिलिटेशन फैमिली में हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर हमें किसी या फिर वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 19। वहां दे रखा है दैट योर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, योर लोकल पुलिस हैव टू सी कि अगर वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है तो फिर आप उसको शेल्टर होम में भिजवाइए। ओके, सो ऑल ऑफ द अबव। Which section of POCSO deals with the punishment for penetrative sexual assault? Penetrative sexual assault बोला है, it is your section number, sorry, wait a minute students, it is mentioning about penetrative sexual assault, yes, it is your section number 4, ठीक है। 3 में बोला penetrative sexual assault क्या होता है, 4 में penetrative sexual assault का punishment दिया है, 5 में बोला एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, 6 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट दी है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन नंबर 25 पॉक्सो, सेक्शन 25 ऑफ पॉक्सो डील्स विद व्हाट? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, बराबर मैजिस्ट्रेट। 24 में भी रिकॉर्डिंग हो रहा है स्टेटमेंट का लेकिन बाय पुलिस हो रहा है, और 25 में कौन कर रहा है, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड पॉक्सो एक्ट रिसीव्स प्रेसिडेंट्स असेंट? प्रेसिडेंट की असेंट का पूछ रहा है, जून 19 2012, जून 19 2012, और इसकी एनफोर्समेंट डेट याद रखना तो काफी इजी है ना। हु इंट्रोड्यूस पॉक्सो अमेंडमेंट बिल? वीरेंद्र कुमार। व्हेन डिड पॉक्सो एक्ट केम इनटू फोर्स? इट इज योर 14th November 2012, बाल दिवस। Which section of POCSO deals with the punishment for the storage of pornographic material? हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 14, 15 and 16. Sorry, wait a minute students, it is 13, 14, 15. Okay, it is your 13, 14 and 15. हम 13 में बोल रहे हैं कि चाइल्ड का ऐसा पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज करने का मतलब क्या है। 14 में इसकी पनिशमेंट दी और अमेंडमेंट से क्या बोला कि अगर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 3 का ऑफेंस किया, 5 का भी ऑफेंस किया, 6 का 7 का भी ऑफेंस किया है वहां पे, तो 14(2) की पनिशमेंट भी मिलेगी, और वहां पे सेक्शन नंबर 4, 6 और 8 की भी साथ में पनिशमेंट मिलने वाली, और 10 की भी पनिशमेंट मिलेगी। ये 14(2) में दे रखा है, ठीक है। और 15 में बोला है कि अगर आपने स्टोरेज किया, उसको सेल आउट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया तो पनिशमेंट मिलने वाली है। तो स्टोरेज के लिए पनिशमेंट कहां है? सेक्शन नंबर 15। कहां है? सेक्शन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 37 किससे डील करता है? ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। 37 ऑफ पॉक्सो हम किसके साथ पढ़ते हैं? वी स्टडी विद 237 ऑफ सीआरपीसी एज वेल एज 327 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो डील्स विद द प्रिजम्पशन ऑफ द मेंटल स्टेट? हमने प्रिजम्पशन से रिलेटेड 2 सेक्शन पढ़े हैं, 29 एज वेल एज 30। 30 किससे डील करता है? प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, एंड 30 किससे डील करता है? प्रिजम्पशन एज टू कल्पेबल मेंटल स्टेट। अब इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, वो 3 एलिमेंट कौन से? आगे आने वाले एमसीक्यू में देखेंगे। सो राइट इज सेक्शन नंबर 30। Section number 12 of POCSO Act deals with what? Punishment for sexual harassment. Punishment for sexual harassment. Clear? Which section of POCSO deals with the punishment for using child for pornographic purpose? अब यहां पे आपको 13 की पनिशमेंट बतानी है, किसमें होता है? यूजिंग ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, सेक्शन नंबर 14. ओके, presumption of culpable mental state includes section number 13, intention, motive, knowledge of the fact. Knowledge of the fact. सब कुछ इंक्लूड होता है, सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पॉक्सो शुड होल्ड व्हाट ऑल क्वालिफिकेशन? जब हमने आपका डिसेबिलिटी एक्ट पढ़ा था, है ना, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें भी हमने पढ़ लिया था कि जब भी एसपीपी की बात आएगी ऑलवेज 7 इयर्स, और उसको आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी, जो कि कहता है वहां पे एसपीपी के पास 10 इयर्स का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सो प्रैक्टिस नॉट लेस देन 7 इयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in how much duration
of under in how much duration trial under POCSO shall be concluded? 1 year, 2 years, 6 months or 3 months? 1 year. From what date? From the date of taking of the cognizance. बराबर? Okay. What is the period for recording of the evidence? अच्छा पहले तो ये देखें कि कौन से सेक्शन में बोल रखा है. It is given under your section number 35. 10 days from taking cognizance, 30 days from taking the cognizance. So आपको एविडेंस कब तक में रिकॉर्ड करना है? 30 days from the date of cognizance. एक बार cognizance लेता है कोर्ट, उसी के बाद रिकॉर्डिंग की जाता है एविडेंस का. So it is your 30 days. And this is also given under your section number 35. Okay. Next question. Question number 200. What is the punishment provided under POCSO Act for using the child for pornographic purpose? यहाँ देखना section number 14 की पनिशमेंट बोला गया है ना. 14 की जनरल पनिशमेंट बताई गई है. तो यहाँ पे हमारी पनिशमेंट कितनी है? 7 years and also liable for the fine. ठीक है. सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. चाहे किसी भी स्टेट जुडिशरी में ये आपके माइनर लॉस आ रहे हैं तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है. यू कैन कलेक्ट द पीडीएफ फ्रॉम योर लॉ वाला टेलीग्राम चैनल. ठीक है, लॉ वाला टेलीग्राम चैनल को जरूर एनरोल कर लें. एंड इन केस इफ यू आर हैविंग एनी अदर डाउट सो यू कैन कनेक्ट विद मी बाय जॉइनिंग माय टेलीग्राम ग्रुप दैट इज शिवानी सोलंकी. सर्च करोगे मिल जाओगे, डाउट भेज सकते हो. एंड एज वेल एज ये चीज ध्यान रखना कि जब आपके पास इतने सारे माइनर लॉज होते हैं तो गलती होना बहुत आम या स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस हैं, सिमिलर प्रोविजंस हैं आपके, चाहे वो ऑफेंसेस से रिलेटेड हो गए हैं, चाहे ऑफेंसेस के नेचर से रिलेटेड हो गए हैं, अपील से रिलेटेड हो गए हैं, और उसके बाद इतनी सारी डेट्स. तो कभी कभी ऐसी चीजें होना लाजमी है. इन चीजों को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ MCQs. अलॉन्ग विद दैट यू कीप रिवाइजिंग द वन शॉट सेशंस जितना जल्दी हो सकता है ना. रोज रोज आप इसको नहीं पढ़ सकते, बट यस वंस इन अ वीक आप इन सारे सब्जेक्ट्स का एक रैपिड रिविजन जरूर देख लें, ताकि आप अपने एग्जाम के आने से पहले तक बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन. नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन. टिल देन थैंक यू सो मच.